گہرا نارنجی جوڑا سانولی دلہن پر عجیب بہار دکھا رہا تھا۔ دلہن کی گردن شرم سے کم اور نکلی سونے سے بھاری پیلے رنگ کے زیورات سے زیادہ جھکی ہوئی تھی۔ بڑا سا ٹکا، نتھ، جھومر، کم عمر چہرہ زیورات سے اتنا ڈھک گیا تھا کہ گھونگھٹ نکالنے کی ضرورت نہیں تھی، مگر جتنا بھی چہرہ نظر آ رہا تھا وہ خوشی سے جگمگا رہا تھا۔ بمشکل 17-18 سال کی گیتا کماری آج اپنے سسرال رخصت ہو رہی تھی۔ دریا کے کنارے دلہا والوں کی کشتی سجی سجائی بالکل تیار کھڑی تھی، جس میں بیٹھ کر گیتا کو اپنے سسرال وداع ہونا تھا، جو کہ دریا کے پار تھا۔ دریا کے پار کئی گاؤں تھے جہاں کی لڑکیاں اکثر بیاہ کر یہاں دھرم پور آتی تھیں، اور کبھی کبھی دھرم پور کی لڑکیاں دوسرے کسی گاؤں رخصت ہو جایا کرتی تھیں۔ دوسرے گاؤں کی دلہنوں کو دھرم پور آتے ہوئے کبھی کوئی گھٹنا پیش نہ آتی تھی، مگر جب کبھی کسی دلہن کو دریا پار رخصت ہونا پڑتا تھا تو بس سارے گاؤں کی جان مانو حلق میں اٹک گئی ہوتی تھی۔ آج بھی گیتا کماری کے ماتا پتا کی سانسیں سینے میں گھٹی جا رہی تھیں۔ گیتا کی ماں کو گیتا کے بیاہ کی خوشی تو بہت تھی، مگر ایک خوف نے اس کی خوشی کو غارت کر رکھا تھا۔ نہ جانے کیا ہوگا، بار بار ایک سوال اس کے دماغ میں ڈنک مار رہا تھا۔ جیسے ہی دلہا دلہن کے پھیرے ختم ہوئے اور پجاری نے پوجا ختم کی، رخصتی کا شور اٹھ گیا۔ دلہا کے ماں باپ نے ان سے اجازت چاہی۔ دلہا دلہن، ان کے ماں باپ اور چند رشتہ دار مندر کی سیڑھیاں اتر کر کشتی میں جا کر بیٹھ گئے۔ مندر خالی ہو چکا تھا سوائے گیتا کی ماں کے، وہاں اور کوئی نہیں تھا۔ گیتا کی ماں نے ایک بار پھر بھگوان کی مورتی کو التجائی نظروں سے دیکھا۔ میری گیتا کی رکشا کرنا، وہ بڑبڑائی۔ جب وہ مندر کی سیڑھیاں اتر رہی تھی تو اس کو محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کے قدموں میں جان ہی نہیں ہے، وہ ہوا میں لہرا رہی ہے۔ بڑی مشکل سے وہ بھی گیتا کے باپ کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی، جو اپنے آنسو پونچھتے ہوئے بیٹی کو وداع کر رہا تھا۔ چلو رے، ڈولی اٹھاؤ۔ پیا ملن کی روتائی، گیتا کی سہیلیاں ودائی گیت گانے لگی۔ کہاروں نے درخت سے باندھا ہوا رسا کھول کر کشتی کو پانی میں ڈال دیا۔ کشتی آہستہ آہستہ ڈولتی آگے بڑھنے لگی۔ گاؤں والے آنکھیں پھاڑے، سانس تقریباً روکے، منہ کھولے کشتی کو آگے بڑھتا ہوا دیکھ رہے تھے۔ کشتی مزید آگے بڑھی۔ دریا گہرا ہونا شروع ہو گیا تھا۔ دریا کوئی گہرا، بہت گہرا سا تھا، سمندر کی برابری کرتا ہوا۔ یہ بڑا پارٹ دوسرا کنارہ دکھائی نہ دے رہا تھا۔ کہتے تھے کہ دریا کے بیچوں بیچ ایک بھنور موجود ہے، بھیانک بھنور، برمودا ٹرائی اینگل کی طرح۔ فرق یہ تھا کہ برمودا ٹرائی اینگل میں غائب ہونے والوں کا کبھی سراغ نہیں ملتا، مگر بھنور میں ڈوبنے والوں کی لاش دوسرے دن کنارے پر پڑی مل جاتی تھی۔ ہاں، ایک بہت بڑا فرق اور بھی تھا، وہ یہ کہ بھنور میں صرف وہ کشتی الٹتی تھی جو دھرم پور سے روانہ ہوتی تھی اور جس میں کوئی دلہن رخصت ہو رہی ہوتی تھی۔ آہستہ آہستہ کشتی تیرتے ہوئے آنکھوں سے اوجھل ہو گئی۔ کوئی حادثہ رونما نہ ہوا تھا، کوئی چیخو پکار کی آواز بھی نہ گونجی تھی۔ گاؤں والوں کی سانسیں آہستہ آہستہ بحال ہونے لگی۔ وہ بھگوان کا شکر کرتے اپنے اپنے گھروں کو لوٹنے لگے۔ گیتا کی ماں نے دوبارہ مندر میں جا کر ماتھا ٹیکا اور سب سے الگ تھلگ دور بیٹھے کانپتے ہوئے پریم چند نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے دریا کی طرف دیکھا۔ شکر ہے، اس نے گہری سانس لی، تیرا شکر ہے۔ کسی بھی مذہب کے لوگ ہوں، کسی کی بھی عبادت کرتے ہوں، خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے ارادی یا غیر ارادی طور پر ہمیشہ آسمان کی طرف دیکھتے ہیں۔ نہ جانے پریم چند شکر کرتے ہوئے دریا کو کیوں دیکھتا تھا۔ گیتا کے بیاہ کے یہ آخری خوفناک جان نکال لینے والے گھنٹے دھرم پور گاؤں والوں کے لیے کوئی نئی بات نہیں تھی۔ کوئی 25 سالوں سے یہ بھیانک سلسلہ چلتا آ رہا تھا۔ دوسرے گاؤں سے بیاہ کر لائی گئی دلہنیں بخیر و عافیت اپنے سسرال پہنچ جاتی،
और हैप्पीली मैरिड की तस्वीर बनकर अपने घरों में जिंदगी गुजारती। मगर जब भी कोई धर्मपुर की लड़की शादी होकर दूसरे गांव रुखसत होती तो अक्सर दरिया पार नहीं बल्कि दुनिया के पार पहुंच जाती। ऐन दरिया के बीचों बीच कश्ती भांवर में फंस जाती, बुरी तरह चकराने लगती और आखिरकार उलट जाती। गांव दरिया के किनारे वाक़या था। गांव के मर्दों का पानी से राजो नयाज उनके बचपन ही से शुरू हो जाता था। घंटों तैराकी करते हुए लहरों से लड़ना उनके बाएं हाथ का खेल था। मगर जो भी कभी भंवर में फंस चुका था, उनका बयान होता था कि वो भंवर नहीं है बल्कि दरिया में मौजूद अंधा कुआं है, मौत का कुआं। फिर भी तैराकी के फन में बचपन से माहिर होने की वजह से सभी लोग लहरों और मौत को शिकस्त दे डालते और बच जाते। यहाँ तक कि कभी किसी दुल्हा को कोई खराश तक नहीं आती थी। मगर दुल्हन सुर्ख लिबास में मलबूस अपने हजारों अरमानों समेत मीलों गहरे पानी में डूब जाती। 25 साल पहले जब ये खूनी सिलसिला शुरू हुआ था तो कई सालों तक तो गांव वालों को वाक़यात की संगीनी का अंदाज़ा ना हो सका और वो उन दुल्हनों के डूब जाने को महज इत्तफाक ही समझते रहे। मगर जब साल 2 साल में कोई एक दुल्हन ज़रूर जान से जाने लगी तो सब ने बरसों पहले की कड़ियाँ जोड़ना शुरू कर दी और नतीजा निकाल लिया कि ये हादसे बेवजह नहीं हैं। दरिया भींट मांगता है और सिर्फ धर्मपुर की किसी लड़की की भेंट मांगता है, दुल्हन बनी हुई लड़की की। प्रेमचंद ने अपनी चारपाई पर आहिस्ता से करवट बदली। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। हस्बे मामूल वैसे तो नींद से उसकी दुश्मनी बरसों पुरानी थी। बरसों से वो सिर्फ चंद घंटे ही सो पाता था। सारा दिन दरिया में कश्ती चलाते, मछलियाँ पकड़ते उनका जोर जोर दुहाई देने लगता था, मगर बिस्तर पर लेटते ही नींद भाग जाती थी, किसी शरीर महबूबा की तरह। महबूबा। प्रेमचंद के चेहरे से एक आंचल टकराया। एक बरसों की जानी पहचानी महक हर तरफ फैल गई। प्रेम की बंद होती आंखें एकदम खुल गईं। उसकी आंखों के सामने एक वजूद साए की तरह लहराने लगा। लंबे लंबे बाल, चमकता चेहरा, मोतियों जैसे दांत चमकने लगे। एक खनकती हुई हंसी उसके कानों में जल तरंग बजाने लगी। दीपा। प्रेम के सूखे लबों से आह की तरह एक नाम निकला। दीपा। उसकी आंखें आंसुओं से भर गई थीं। दूसरे दिन गीता कुमारी के ससुराल से खैरियत की इतला आ गई। गीता के घर वालों ने सुकून का सांस लिया। अब की बार गीता की माँ ने घर पर ही भगवान का शुक्र अदा कर दिया। बेटी अपने घर जाकर बस चुकी थी। अब कौन मंदिर की 2 मंजिला सीढ़ियाँ चढ़ने का कष्ट उठाए। और भाई भगवान तो हर जगह मौजूद है कि नहीं। बाकी जवान लड़कियों की माएँ एक मर्तबा फिर अपने दिल मजबूत करने लगीं और दरिया पार से उनके लिए आए हुए रिश्तों पर गौर करने लगी। गांव के लोग भी बेचारे क्या करते। लड़कियों की बहुतात थी। कभी कभी तो शक होने लगता था कि शायद दरिया में जितनी मछलियां हैं, गांव के घरों में इतनी ही लड़कियां बड़ी हो रही हैं। अब ना चाहते हुए भी जिनके जोड़ के लड़के गांव में ना होते, उनका रिश्ता दरिया के पार तय करना पड़ जाता था और फिर अनदेखे खौफ का सिलसिला शादी के दिन तक चलता रहता था। हाँ, हमेशा ही हर नाव नहीं डूब जाती थी। बस साल 2 साल में एक मर्तबा जरूर कोई बदकिस्मत दुल्हन दरिया की गहराई नापते हुए ऊपर आकाश पर पहुंच जाती थी। कौन दरिया पार उतरेगा तो कौन दुनिया के पार चला जाएगा, कोई नहीं जानता था। प्रेमचंद की बेटियां भी शादी की उम्र को पहुंच चुकी थीं। बड़ी वाली तो 21 की हो रही थी। उसकी बीवी बमला उनकी शादी के लिए हलकान हो रही थी। ऐसा नहीं था कि उसकी लड़कियों के लिए रिश्तों की कमी हो। हर चौथे दिन कोई पैगाम किसी बेटी के लिए आया होता था। हाँ, मगर होता हमेशा दरिया पार से था। वैसे तो प्रेमचंद ने बमला से कई बार किसी बात पर आर्ग्यू नहीं किया था। जब उनकी पहली बेटी पैदा हुई थी तो नाम रखने के समय प्रेम के दिल की गहराई से एक आवाज़ निकली थी, दीपा।
उसका नाम दीपा रखेंगे, प्रेम ने इल्तिजा की थी, मगर बमला ने तो फौरन ही रिजेक्ट कर दिया था। दीपा भी कोई नाम है भला, इतना पुराना। मेरा बड़ी चाची का नाम भी दीपा था, उसने चिढ़कर कहा था। बमला ने तो शादी के फौरन बाद ही अपने होने वाले बच्चों के नाम सोच लिए थे। जब उनकी नई नई शादी हुई थी, वो प्रेमचंद के साथ शहर घूमने गई थी और अपनी जिंदगी की पहली फिल्म उन्होंने सिनेमा घर में देखी थी। सिनेमा की बड़ी सारी स्क्रीन पर मौजूद हंसते हुए गुनगुनाते हीरो पर बमला को इस कदर शदीद क्रश हुआ था कि वो थोड़ी देर को बराबर बैठे अपने नए नवेले शौहर को भूल गई थी और उसने अपने दिल में पक्का इरादा कर लिया था कि वो अपने बेटे का नाम देव आनंद रखेगी। घर वापस लौटकर बहुत दिनों तक उसके दिमाग पर फिल्म सवार रही। कितना शौक था बमला को कि कभी तो प्रेमचंद उसकी साड़ी का आंचल पकड़कर गुनगुनाए, अरे यार मेरी तुम ही हो बस, या फिर कभी बमला उससे रूठे तो उसके आगे पीछे गाता फिरे, माना जनाब ने पुकारा नहीं। मगर प्रेमचंद की जिंदगी में रोमांस नाम की कोई चीज मौजूद ही नहीं थी, कम से कम बमला के लिए तो नहीं थी। बमला खुद भी गांव में ही पली बड़ी थी, मगर उसको गांव वालों के तौर तरीके बहुत ओल्ड फैशन लगते थे और उनके नाम अजीबोगरीब नामों की बहुतायत थी। खुद बमला के भाई नत्थू लाल और तिजोरी लाल और उसकी सहेलियां काकी और शानो। खैर, बमला को भगवान ने पहली बेटी दे दी तो उसने नौतन नाम रख दिया। प्रेमचंद ने उस वक्त तो दिल पर पत्थर रख लिया था, मगर जब भी बमला नौतन के लिए आए किसी दरिया पार वाले लड़के के रिश्ते का जिक्र करती तो वो सख्ती से इनकार कर देता, नहीं, दरिया पार नहीं। 25 साल कौन सा इतना बड़ा समय होता है, अभी कल की ही तो बात लगती है। बस फर्क सिर्फ ये है कि 50 साल का प्रेम उस वक्त 25 साल का था, बिल्कुल जवान खुश शक्ल। प्रेम का जिस्म 50 साल की उम्र को जरूर पहुंच गया है, मगर उसका दिल 25 साल से पहले ही मर गया था। 25 साल पहले उसका दिल उमंगों से भरा हुआ था, धड़कता था, और जब दीपा उसके सामने आ जाती थी तो शिद्दत से धड़कने लगता था, इतना तेज कि धड़कन प्रेम को अपने कानों में महसूस होने लगती थी। दीपा गांव की सबसे सुंदर लड़की थी। ये सिर्फ प्रेम का ख्याल ही नहीं था, हर रोज किसी न किसी लड़के की माँ दीपा के घर सवाली बनकर आई होती थी, मगर दीपा के बाप को तो किसी शहजादे की तलाश थी। प्रेम पर दुगनी मुसीबत आ जाती थी, एक तो दीपा के लिए आने वाला रिश्ता, ऊपर से लोग दरिया पार जाने के लिए उसकी नाव किराए पर मंगवा लेते थे। प्रेम मछेरे का बेटा था, कश्ती चलाना, मछलियां पकड़ना उसका नस्लों से पेशा चला आ रहा था। दीपा गांव के सबसे बड़े घर की बेटी थी, मगर मोहब्बत ने कब अमीरी गरीबी देखी है। वैसे कहने की बात है कि मोहब्बत अंधी होती है, झूठ। कब होती है मोहब्बत अंधी? इंतहाई चालाक और मक्कार होती है मोहब्बत, हमेशा हंसी चेहरे का इंतखाब करती है। कोई एक मिसाल बता दे कि 2 बहनों या फिर 2 सहेलियों में से किसी ने कम शक्ल वाली का इंतखाब किया हो, या किसी लड़की ने 2 दोस्तों में से जानबूझकर बेचारे गरीब लड़के को चुन लिया हो। प्रेमचंद ने भी तो दीपा के हुस्न के आगे घुटने टेक दिए थे, वरना उसकी बचपन की मांग बमला में कौन सी बुराई थी। बेचारा प्रेम ये जानते हुए भी कि दीपा उसकी दस्तरस से जन्मों दूर है, उसको दिल दे बैठा था। प्रेम की मोहब्बत बेशक अंधी नहीं थी, मगर सच्ची थी, बिल्कुल सच्ची। गीता की शादी के बाद चंद महीने गुजरे और मजीद 2 दुल्हनें खैर से ससुराल सुधर गईं। गांव वालों ने सुकून का सांस लेना और रिश्तों पर फिर से गौर करना शुरू कर दिया। मंदिर के पुजारी साहब ने कई मर्तबा लोगों के हजूम में क्रेडिट लेना चाहा कि उनकी पूजा पाठ और दरिया में एक टांग पर खड़े होकर अमल करने का नतीजा है कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है और दरिया ने भीख मांगना छोड़ दिया है। बमला ने भी प्रेमचंद पर दोबारा जोर देना शुरू कर दिया कि अब वो किसी रिश्ते पर हामी भरकर नौतन को उसके घर का कर दे।
کہ ایک دن آخر بیاہ تو کرنا ہی ہے۔ پھر ایک کشتی دریا میں الٹ گئی اور چند منٹوں کی دلہنیں پانی میں ڈوب گئی۔ دلہن بھی کوئی اور نہیں، بملا کی بچپن کی سہیلی کی بیٹی انجو تھی۔ بملا اور نوتن پر سکتہ طاری تھا، پورے گاؤں میں ماتم کا سماں تھا۔ انجو کی ماں دیواروں سے سر ٹکرا کر رو رہی تھی۔ آدھی رات گزر گئی تو شور کی آوازیں تھم گئی۔ انجو کے گھر سے سنائی دینے والی چیخیں بھی بالآخر رک گئی تھیں۔ گاؤں والے بیچارے غم کے مارے تھکے ہارے شاید سو گئے تھے یا بے سدھ پڑے تھے۔ کئی گھنٹوں سے چھت کو گھورتے پریم کے چہرے سے ایک آنچل ٹکرایا، سفید آنچل۔ 25 برسوں سے اس آنچل کا ایک ہی رنگ تھا، سفید۔ پریم آہستہ سے اپنے گھر سے نکل آیا۔ چاند کی آخری تاریخیں تھی، ہر طرف نیم اندھیرا چھایا ہوا تھا، فضا بہت اداس اور پراسرار تھی۔ اتنا سناٹا تھا کہ پریم کے پیروں تلے آ جانے والے سوکھے پتوں کی آواز تک سنائی دے رہی تھی، ڈراؤنی آواز جیسے کوئی کراہ رہا ہو۔ اس نے اپنی دکھی نگاہیں دریا کی طرف اٹھائیں۔ اس وقت اندھیرے میں دریا سیاہ لگ رہا تھا۔ آج پھر ایک پھینٹ لینے کے بعد اس کی قاتل لہریں اتنے سکون سے بہہ رہی تھیں جیسے کسی کو شاید بھوک میں کھانا کھا کر گہری نیند آ جائے۔ پریم کے گھر سے دریا چند منٹ کے فاصلے پہ تھا۔ وہ آنکھیں بند کر کے وہاں پہنچ سکتا تھا، مگر اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے میلوں کا سفر طے کیا ہو ننگے پیر۔ وہ تھکن سے بے حال گھٹنوں کے بل گر گیا۔ اچانک اس پر نیند حملہ آور ہو گئی۔ ایک بے ہوشی اس کی آنکھوں میں بند ہونے لگی، مگر کہیں قریب سے ایک ہنسی کی آواز جل ترنگ بجانے لگی، ایک جانی پہچانی ہنسی۔ دیپا؟ پریم نے بے ساختہ آنکھیں کھول دی۔ وہی تھی۔ پریم 50 کا ہو چلا تھا، مگر وہ تو بالکل ویسی کی ویسی تھی، جوان حسین، چند قدموں کے فاصلے پر کھڑی، ہنس رہی تھی۔ پریم کو اس کی ایک ایک ادا زہر تھی۔ اس کی کھلی زلفیں جھٹکنا، اترا کر چلنا، پھر مڑ مڑ کر مسکرانا۔ مسکرا تو وہ آج بھی رہی تھی، مگر اس کی آنکھیں قہر برسا رہی تھیں، زہر برسا رہی تھیں۔ وہ نفرت سے پریم کو گھور رہی تھی۔ دیپا؟ پریم کے منہ سے نکلا۔ نہ جانے دیپا کے نام سے پریم کا کیا تعلق تھا۔ ادھر اس کا نام پریم کے لبوں سے نکلتا تو آنسوؤں کی دھار اس کی آنکھوں سے بہنے لگتی، ہمیشہ کی طرح۔ آج بھی دیپا پکارتے ہی وہ رونے لگ گیا۔ دیپا، آج تو میری بات سن لے، مجھے क्षमा کر دے۔ وہ حسب معمول دریا کو دیکھتے ہوئے معافی مانگ رہا تھا۔ کہتے ہیں کہ عورت مرد کی نظر کو فوراً پہچان لیتی ہے۔ دیپا خوب جانتی تھی، ہوش سنبھالتے ہی جاننے لگی تھی کہ پریم اس کا دیوانہ ہے، اس کی ہر ادا پر جان دیتا ہے۔ مگر پریم کی محبت قطعاً ون سائیڈڈ نہیں تھی۔ دونوں اپنی اپنی جگہ اچھی طرح سمجھتے تھے کہ یہ محبت لا حاصل ہے، اور دونوں کو اس پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ دیپا تو تھی ہی اتنی پیاری کہ یہ محبت تو اس کا حق تھی، اور پریم پر تو شاید اس کے نام کا حد سے زیادہ اثر تھا۔ اس کو دیپا کو چاہنے کے علاوہ کچھ نہیں چاہیے تھا۔ بات اگر یہیں تک رہتی تو پھر یہ کہانی کیسے بنتی؟ دیپا کے لیے آخر کار ایک بہترین رشتہ آ ہی گیا، اور اس کے ماں باپ نے اسے قبول کر لیا۔ لڑکا خوبصورت تھا، کھاتا پیتا تھا اور بڑے گھر کا تھا، اور کیا چاہیے تھا؟ دونوں طرف سے شادی کی تیاریاں زوروں پر تھیں۔ لڑکے والے دریا پار کے گاؤں سے تھے۔ جب بھی وہ کوئی رسم کرنے یا پھر ویسے ہی ملنے ملانے دیپا کے گھر جاتے تو واپس جانے کے لیے پریم چند کی ناؤ وہی کرائے پر منگوائی جاتی۔ پریم چند کے دل پر کیا گزرتی تھی، یا تو وہ خود جانتا تھا یا بھگوان۔ کئی برسوں سے راتوں کو دیپا کے خواب دیکھنا تو پریم کا معمول تھا، مگر اس نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ وہ اور دیپا کبھی آمنے سامنے ہوں گے، اتنے قریب، بالکل اکیلے۔ دیپا کے بیاہ کے دن بالکل قریب آ گئے تھے۔
प्रेम ने अपने दिल पर पत्थर की सील रख ली थी, बल्कि खुद को पत्थर कर लिया था कि एक दिन दीपा के घर से पैगाम आ गया कि कल कश्ती तैयार रखे। दीपा और उसकी माँ को दरिया पार के मंदिर जाना था। दीपा की माँ ने अपनी नाजो पली बेटी की बेहतरीन रिश्ते के लिए कब से मन्नत मानी हुई थी कि वो पूरे 7 मंदिरों में प्रसाद चढ़ाएगी, और अब दीपा के ब्याह के दिन बहुत करीब आ गए थे, तो वो जल्द अज जल्द अपनी मन्नत पूरी कर रही थी। प्रेमचंद ने सुबह से ही अपनी नाव साफ सुथरी करके तैयार रखी थी। अगर उसको दीपा की माँ का खौफ ना होता तो वो पूरे गांव के फूल दीपा के कदमों तले बिछा देता, मगर दीपा की माँ तो आई ही नहीं। अकेली आती दीपा को देखकर वो हैरान रह गया। दीपा की माँ को रात से ऐसा बुखार चढ़ा कि वो सुबह खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। उसने दीपा को मन्नत पूरी करने भेज दिया। क्या था अगर दीपा भी ना आती, ये सब तो ना होता। ये सब होकर भी क्या हो गया, ना तो प्रेम को कुछ मिल सका और ना ही दीपा को। दीपा आहिस्ता आहिस्ता चलती आकर कश्ती में बैठ गई। प्रेम ने कश्ती पानी में डाल दी। कश्ती आगे बढ़ने लगी। प्रेम आहिस्ता आहिस्ता चप्पू चलाने लगा। दीपा सर झुकाए बैठी थी। दोनों को एक दूसरे से झिझक महसूस हो रही थी। न जाने क्या हुआ, कैसे हुआ, प्रेम में जाने इतनी हिम्मत कैसे आ गई। कश्ती दरिया के बीच पहुंच चुकी थी। प्रेम ने कश्ती रोक दी। दीपा ने चौंक कर प्रेम को देखा। न जाने क्या था दीपा की खूबसूरत आंखों में। उस वक्त दीपा की मद भरी आंखों ने प्रेम पर सचमुच नशा तारी कर दिया। वो किसी मदहोश शराबी की तरह हर खौफ से बेनियाज हो गया था। दीपा, तुम ये ब्याह मत करो। और तो कुछ सूझा नहीं। प्रेम के मुंह से ये बेरब्त जुमला फिसल गया। क्यों ना करूं? तुम जानती हो, अच्छी तरह जानती हो, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। प्रेम की आवाज कांपने लगी। अच्छा। दीपा का मखसूस एतमाद लौट आया। तो फिर? एक खूबसूरत राजकुमार जैसे लड़की से रिश्ता तय हो जाने से दीपा में गुरूर पैदा हो गया था। तो ये कि तुम मुझसे शादी। प्रेम की आवाज टूट गई। तुमसे शादी? दीपा ने तंज किया। तुम हो क्या? तुम मुझसे शादी करोगे? मुझसे? शायद तुम भूल गए हो कि तुम मछेरे हो। तुम्हारा बाप भी मछेरा है। मुझसे शादी का नाम भी लिया तो मेरे पिताजी तुमको तुम्हारी नाव के साथ दरिया में फेंकवा देंगे। प्रेम की आंखें आंसुओं से भर गईं। क्यों? नाव दरिया में फेंक देंगे? क्या मैंने खुद आपको मछेरा पैदा किया है? थोड़ी देर मजीद दोनों की बहस चलती रही और फिर वो हो गया जिसके होने से दोनों की तकदीर उलट गई। सूरज डूबने लगा था। कश्ती दरिया के बीचों बीच कब से रुकी हुई आहिस्ता आहिस्ता डोल रही थी। दीपा हद से ज्यादा हसीन लग रही थी। प्रेम की नजरें दीपा से हटने को तैयार नहीं थीं। दीपा को खौफ आने लगा, शदीद खौफ। प्रेम, नाव चलाओ वरना अच्छा नहीं होगा। अच्छा? तो अभी भी अच्छा नहीं हो रहा है दीपा। प्रेम की आवाज भारी होने लगी। न जाने कहां से एक कमजोर लम्हा उनके बीच आ गया। प्रेम दीपा की आखिरी चीख प्रेम के कानों में गूंज गई। हाँ, प्रेम की आंख खुल गई। उफ, वो चीख, वो गूंज उसी तरह, उसी शिद्दत से उसको महसूस होती थी। दीपा ने दरिया में छलांग लगा दी थी। वो दीपा से इश्क का दावेदार, उसका पुजारी, उसको बचाने नहीं पाया था। जब वो लुटा पुटा आधी रात को घर पहुंचा तो उसकी हालत इतनी खराब थी कि उससे ज्यादा सवालात नहीं किए गए। यहाँ तक कि दीपा के घर वालों ने भी रो पीट कर सब्र कर लिया। भंवर में कश्ती उलट गई थी। उसके मुंह से बस इतना निकला था। वैसे भी प्रेम और उसके घर वालों का साबका रिकॉर्ड सालों से इतना शफाफ था कि उन पर शक किए जाने का तो सवाल ही नहीं था। और फिर एक अरसे तक प्रेम बिल्कुल सत्ते में आ गया था। उसने तो किसी से बात करना, हंसना, मुस्कुराना बिल्कुल छोड़ दिया था। उसकी हालत देखते हुए 2-3 साल बाद उसकी जबरदस्ती शादी कर दी गई, मगर उसका सत्ता ना टूट सका। उसका दिल दोबारा किसी के लिए ना धड़क सका।
किसी रोबोट की तरह वो अपनी कश्ती और अपनी जिंदगी की गाड़ी घसीटता रहा और 25 बरस बीत गए। जब दीपा ने उसकी कश्ती से कूदकर अपनी जान दे दी थी तो उसी साल गांव में एक शादी हुई थी। दुल्हन दूसरे गांव विदा हुई थी कश्ती में बैठकर। वो शादी बड़े ही ठाठ से की गई थी। ना सिर्फ दुल्हा दुल्हन की बल्कि बहुत सारी सजी हुई कश्तियां पानी में उतारी गई थी, जिनमें तकरीबन पूरा गांव सवार था सिवाय प्रेमचंद के। वो तो उन दिनों सख्त शौक की कैफियत में मुब्तला न जाने खलाओं में क्या ढूंढा करता था। तो उस शादी में पहली मर्तबा दुल्हन की नाव भवन में फंसकर उलट गई और दुल्हन फूलों की तरह सेज में सजाए मौत की आगोश में जा सोई थी। उस दिन बल्कि उसी रात पहली मर्तबा दीपा प्रेम के सामने आ खड़ी हुई थी, अपने लबों पर वार्निंग देती हुई मुस्कुराहट और आंखों में नफरत और इंतकाम लिए। वो खुद तो दुल्हन बनकर रुखसत ना हो सकी थी, मगर अब वो किसी भी दुल्हन को धर्मपुर से रुखसत नहीं होने देगी, कम से कम इत्मीनान से तो हरगिज नहीं। उसने प्रेम को जता दिया था और फिर गुजरते वक्त ने साबित कर दिया कि दीपा की धमकी गलत नहीं थी। 25 सालों में कोई 15 दुल्हनें दरिया की भींट चढ़ चुकी थी और न जाने कब तक ये खूनी सिलसिला चले जाना था। प्रेमचंद ने दरख्त से बंधी कश्ती का रस्सा खोलकर कश्ती पानी में उतार ली। कोई आधी रात का समय था। वैसे तो मछलियां पकड़ने के लिए सारे मछेरे बिल्कुल सवेरे ही जाल पानी में डालते हैं, मगर ये तो काली रात थी। सारे गांव पर सन्नाटा तारी था। रात कितनी पुरस्रार चीज होती है ना। अच्छे खासे खूबसूरत नज़ारे रात की तारीकी में डरावने लगने लगते हैं। दरिया आहिस्ता आहिस्ता बहता हुआ अंधेरे में बहुत खौफनाक लग रहा था, जैसे काले लंबे सांप रेंग रहे हों। ठंडी ठंडी हवा की आवाज उस वक्त बैन करती महसूस हो रही थी। ऐसा लग रहा था अब या तब कुछ हो जाएगा, कुछ बहुत बुरा। कश्ती दरिया के बीच पहुंची तो खुद ब खुद रुक गई। वही सफेद आंचल उसके चेहरे से टकराया। प्रेमचंद अपने ख्यालों से निकल आया। वो कश्ती के कोने में बैठी थी, ऐन उसी जगह जहां 25 साल पहले बैठी हुई थी। सफेद लिबास पहने वक्त के साथ उसके हुस्न में एक अजीब चीज शामिल हो गई थी, एक दिल दहला देने वाली चीज, एक डरा कर रख देने वाला एहसास। प्रेमचंद कांपने लगा, खौफ से हरगिज नहीं, दीपा की मौजूदगी के एहसास से। दीपा, मुझे क्षमा कर दे, मेरी बात मान ले, वो बड़ी हिम्मत करके बोला था। तूने सुनी थी मेरी बात? दीपा मुस्कुराई, नफरत से भरी हुई मुस्कुराहट। तू तो मुझसे प्रेम करता था ना, पूजा करता था ना मेरी? करता था नहीं, करता हूँ दीपू। एक मर्तबा फिर दीपा का नाम लेते ही प्रेम की आंखों में आंसू भर गए। आज तक करता हूँ। तुझसे मोहब्बत करने के अलावा मैंने अपने जीवन में किया ही क्या है? तू ही समझ ना सकी। उसकी आवाज भरा गई। तो उस दिन भी गलत समझी थी दीपा। प्रेम ने अपनी बात जारी रखी। बरसों बाद आज वो फिर सवाल जवाब कर रहे थे। आज वो सब कुछ कह देना चाहता था। 25 साल से उसकी बात नामुकम्मल थी। मैं तो ख्वाब में भी कभी तेरे पाँव नहीं छूने की हिम्मत कर सकता था। तूने कैसे सोचा कि मैं उस दिन तेरे साथ प्रेम गिड़गिड़ा रहा था? दीपा के चेहरे से मुस्कुराहट गायब हो गई। तू झूठ बोल रहा है, तेरी नीयत खराब हो गई थी। दीपा की आवाज में तेजी नहीं थी। तू मेरी जान ले ले दीपा, 100 बार ले ले, मगर मेरी मोहब्बत पर इतना बड़ा इल्जाम ना लगा। प्रेम की आवाज में इतना कर्ब था कि परसों पहले दुनिया से गुजर जाने वाली दीपा ठटक गई। उसकी 25 सालों से आग बरसाते हुई आंखों में से आंसू निकल आए। बरसों से मैं सिर्फ तेरे मर जाने का दुख ही नहीं झेल रहा हूँ दीपा, मैं उस आग में जल रहा हूँ कि तूने मेरी पूजा पर शक किया था। तूने मुझसे डर कर जान दे दी थी। कितनी जानें ले ली तूने दीपा। उनका क्या कसूर था? मेरा क्या कसूर था? दीपा फिर भड़क उठी।
ना तो मुझे पूरी जिंदगी मिल सकी, ना ही पूरी मौत। मैं क्यों भटक रही हूँ? मैं अब भटकते हुए थक गई हूँ। मुझे अब शांति चाहिए। मुझे पूरा जीवन नहीं मिला प्रेम, मुझे अब पूरी मौत चाहिए। आह! प्रेम के चेहरे से एक बड़ी सी लहर आकर टकरा गई। वो बुरी तरह चौंक गया, जैसे दुनिया में वापस आ गया। दीपा कब की गायब हो चुकी थी। बमला ने नौतन की बात पक्की कर दी थी। लड़का खूबसूरत था, नौतन के जोड़ का था और दरिया के पार रहता था। पहली मर्तबा ऐसा हुआ था कि बमला नौतन का रिश्ता दरिया पार करते हुए हिचकिचा रही थी, मगर प्रेमचंद ने पहली मर्तबा जिद पकड़ ली थी। तो भगवान का नाम लेकर ब्याह तय कर दे, नौतन की नाव नहीं डूबेगी। अब किसी दुल्हन की नाव नहीं डूबेगी, उसने अपने दिल में कहा था। शादी का दिन करीब आ चुका था। सारी तैयारियां मुकम्मल थीं। बमला बहुत खुश थी, सारा गांव ही खुश था, मगर फिर भी एक धड़का सा लगा हुआ था, जाने क्या होगा। बारात से चंद दिन पहले प्रेमचंद ने अपनी बरसों पुरानी कश्ती बाहर निकाल ली। इस कश्ती को क्यों निकाल लिया पिताजी? इसमें तो सुराख है, उसके बेटे ने हैरानी से पूछा था। सोच रहा हूँ मरम्मत करवा लूं, पुरानी चीज है, मजबूत है, उसने बेटे को टाल दिया। आधी रात गुजर चुकी थी। प्रेमचंद ने अपनी पुरानी कश्ती दरिया में उतार दी। ये वही कश्ती थी जिससे दीपा ने दरिया में छलांग लगाकर जान दे दी थी। नाव बहुत खस्ता हाल हो चुकी थी, मगर प्रेम ने उसे संभाल कर रखा हुआ था, बल्कि अपनी जान से लगा कर रखा था। कश्ती में मौजूद सुराखों को कपड़े भरकर बंद किया हुआ था, मगर फिर भी वो बहुत आहिस्ता रफ्तार से बह रही थी। आखिरकार कश्ती दरिया के बीचों बीच पहुंच गई। प्रेम को महसूस होने लगा जैसे वो किसी टाइम मशीन में बैठकर 25 साल पीछे पहुंच गया हो। वही नाव, वही पानी की लहरें और वही प्रेम। हाँ, दीपा नहीं थी, और हाँ, आज बरसों के बाद प्रेम बहुत मुतमईन था। कोई आजकल की बात नहीं, सदियों से सुनते आ रहे हैं। प्रेम भी सुनता आया था किसी भटकती आत्मा को कैसे मुक्ति मिलती है। कोई बरसों से दर बदर फिरती बदरू किस तरह हमेशा के लिए शांत हो जाती है। उसके मरने की वजह को सजा देकर, उसको बिल्कुल उसी अंदाज में मौत देकर जिस तरह उसे मारा गया था, प्रेम ने कश्ती रोक दी। दीपा देख, मैं आ गया हूँ, वहीं खड़ा हूँ, उसी जगह। तूने मेरी मोहब्बत कबूल नहीं की थी। उसकी आवाज भरा गई। तूने मेरी माफी कबूल नहीं की, आज तक नहीं की, पर दीपा, आज मेरी भींट कबूल कर ले। प्रेम ने नाव के सबसे बड़े सुराख से कपड़ा निकाल लिया। कश्ती में तेजी से पानी भरने लगा। ये भींट तुझे कबूल करनी पड़ेगी दीपा, इसमें ही नजात है, तेरी भी और मेरी भी। प्रेम की कमर तक पानी आ गया था। कश्ती तकरीबन डूब गई थी। दीपू, मुझे क्षमा कर दे, गांव की दुल्हनों की भींट लेना छोड़ दे। प्रेम के चेहरे से एक आंचल टकराया। अचानक कश्ती जोर जोर से घूमने लगी, जैसे किसी भंवर में फंस गई हो। प्रेम ने एक गहरी ठंडी आखिरी सांस भरी। एक तेज लहर ने आखिरकार कश्ती को उलट दिया। प्रेम चंद लम्हों में मीलों गहरे पानी में जा गिरा। नौतन की बारात प्रेम की वसीयत के मुताबिक उसी तारीख पर आई और खैरियत से दरिया पार पहुंच गई। उस दिन के बाद दरिया ने फिर कभी किसी दुल्हन की भेंट नहीं मांगी।